Hello students, I once again welcome you all on my YouTube channel, that is Easy Chemistry, and today we are going to continue with our electrochemistry. And in the last video we have seen about the Colroche law of independent migration, and today we will see the next topic of the electrochemistry, that is the measurement of conductivity. Okay, so we have seen what do we mean by conductivity in our previous video. Then we have seen about how this conductivity varies when we dilute the solution. We have seen that, and accordingly when we want to find out the conductivity for the weak electrolytes, we use the Colroche law of independent migration of ions. Okay, now when we want to measure this conductivity in a practical lab, whenever you are performing some experiment, through that experiment of any particular solution, if you want to find out the conductivity of any particular solution, then it cannot be directly found, but we can find it using the Wheatstone bridge principle. Okay, now we know that Wheatstone bridge principle is used to calculate the resistance. Yes, and also we have seen that conductance is just the inverse of resistance. Conductance, that is given by G, that G, we have seen that this G is inversely proportional to R, means it is nothing but the conductance is inverse to that of the resistance. So in order to measure the conductivity, we are going to measure the resistance using the Wheatstone bridge apparatus, and we will find out the conductivity of any particular solution of whatever we want to study. Okay, now for this, first of all, we need in order to find out the conductivity for a particular solution, we need to construct the conductivity cell. Okay, we need to conduct the conductivity cell. Now how this is, what is this conductivity cell? Now this conductivity cell consists of a glass tube. Okay, there is a glass tube. Okay, and in this glass tube we are connecting two electrodes, two platinum electrodes. Okay, we are connecting, we are placing two platinum electrodes. Now this electrodes means this is the plating, this plate, that is the electrode, this is made up of the platinum. Okay, so this is a platinum electrode. Okay, now this electrode is coated with the with platinum by the process of electrolysis. Okay, that we will see in this chapter. So through the electrolysis process, we cover or we coat this electrode with the platinum. Okay, platinum black. Now, and this complete this setup. Okay, now this is a glass tube, and it is a very good quality glass tube made up of Pyrex glass. जैसे आप लोगों ने लैब में बोरोसिल ग्लास देखा होगा. Okay, you use the test tubes, they are made up of बोरोसिल. Okay, so in this way Pyrex is also a very one of the good quality glass, and this glass tube is made up of Pyrex glass. अब ये जो कंडक्टिविटी सेल है, इसमें ये ग्लास ट्यूब है और इसके साथ दो इलेक्ट्रोड हमने अटैच किए हैं जो कि प्लैटिनम से बने हुए. ओके, एंड दिस कंप्लीट इलेक्ट्रोड is dipped in a solution. इसको हमने क्या किया है, we have dipped it in a solution, and whatever solution, जिस भी solution की हमें conductivity पता करनी है, उसमें हमने क्या किया है, ये जो electrodes है उनको dip किया हुआ है. And this setup, this complete setup is known as the conductivity cell. इसको हम क्या कहेंगे, conductivity cell. ओके, वी नो दैट वट एवर आयंस आर प्रेजेंट, हम लोगों ने इससे पहले भी वीडियो में देखा है कि यहाँ पे जितने भी आयंस इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो क्या होंगे, माइग्रेट होंगे टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, और इस माइग्रेशन की वजह से जो भी करंट पास होगा दैट इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी ऑफ दैट सोल्यूशन. जितना कंडक्ट कर रहा है सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को, ये क्या होगी उसकी कंडक्टिविटी. सो वी हैव टू मेजर दिस कंडक्टिविटी यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड. ओके, now we know that we have seen about that the conductivity K is equals to 1 upon R into L upon A. ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब हम रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस देख रहे थे तब हमने देखा था दैट कंडक्टिविटी K is equals to 1 upon R into L upon A. अब ये जो L है वो क्या है, it is the distance between the two electrodes, distance between
2 electrodes. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स. मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रोड मैंने ले लिए, इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, L. एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, A is the cross sectional area of the electrode. जो भी इलेक्ट्रोड हमने इसमें यूज किए हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल a. और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, L, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. एंड K इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सोल्यूशन. तो ये हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने पहले देख चुके. अब इसमें ये जो वैल्यू है L अपॉन A, ओके. अब जो भी सेल कंस्ट्रक्ट होगा, जो भी सेल कंस्ट्रक्ट होकर हमको जो मार्केट से ये सेल ऑटोमेटिक मार्केट से हम लोग को मिलता है, ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके हमें मिलता है. तो ये जो कंडक्टिविटी सेल है, इस सेल में ये जो डिस्टेंस रहेगा L और A, ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा. इसको हम चेंज नहीं कर सकते. आपने सपोज एक बैटरी ला ली, ए साइज की बैटरी ला ली, ठीक है. उसके अंदर भी क्या है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है जो कि आपस में कनेक्टेड है. उनके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स है और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फिक्स्ड है. वो चीजें, ये दोनों जो चीजें हैं, ये क्या है, हर एक सेल के लिए फिक्स्ड रहेगी. मतलब क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी. तो ये जो L अपॉन A है, हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज सेल कांस्टेंट. Okay, this is called as the cell constant. For a particular cell, this L upon A will be the same, will remain the same throughout, and therefore it is called as a constant value. And since it is for a cell, we call it as a cell constant. Okay, so L upon A is the cell constant. Now this cell constant, so if I substitute L upon A as cell constant, if I write cell constant, तो मेरी reaction क्या बन जाएगी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, K is equals to L upon A is cell constant upon R. K is cell constant upon R. तो इस तरह से हम इसको एक रिलेशन ये भी दे सकते हैं कि K conductivity is nothing but cell constant upon R, or we can also say conductivity is nothing but 1 upon R into L upon A. अब ये जो पूरा सेटअप है, अब हम इसे how we are going to measure the conductivity using the Wheatstone bridge method, ये हम देखेंगे. ठीक है. So let us connect this conductivity cell to the Wheatstone bridge and find out the resistance. और एक बार अगर हमें resistance पता चल जाता है solution का, तो we can easily find out the conductivity. Okay, so let us do that. So what is now this Wheatstone bridge? Wheatstone bridge is an apparatus which is generally used in your physics lab. You must have done the experiments in class 12, and in chemistry we are just going to see the theoretical Wheatstone bridge. There is no experiment on Wheatstone bridge in chemistry, but you are going to definitely use this apparatus in chemistry, in physics. Okay, so let us see how this apparatus works to find out the conductivity of a cell. Now सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये होता कैसा है. ठीक है, तो उसका हम पहले फिगर देख लेते हैं. कंडक्टिविटी सेल ऐसा कुछ इस Wheatstone bridge इस टाइप का कुछ होता है. यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, and again a metal plate in between, and then again here a another metal plate of inverse L shape. ठीक है. Then यहाँ पर कुछ points होते हैं. Okay, ये 1 point हो गया. यहाँ पे एक second point, third point, fourth point, fifth point. Okay. और ये जो दो यहाँ पर ये जो दो points है, इनके बीच में, let me extend this. Okay. Now these two points are connected with a thin metallic wire. एक वायर से जुड़ा हुआ होता है, ये दोनों के बीच में एक वायर होती है. ठीक है. Now and then to this we connect a cell. यहाँ पे हम लोग जनरली जब आप रेजिस्टेंस पता करोगे, आप जब यूज करोगे ये फिजिक्स में, तो यू जनरली यूज द डीसी करंट. बट इन दिस केस वी आर नॉट गोइंग टू सी टेक द डीसी करंट, बट वी आर गोइंग टू टेक द ऑल्टरनेटिंग करंट. ये ऐसा हमने क्यों लिया, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में. ठीक है. तो अब ये इस तरह का सेटअप होता है. ठीक है. अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट के बीच में हम यहाँ क्या लगाते हैं, वी आर अटैचिंग वन रेजिस्टेंस बॉक्स टू इट. ठीक है. अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता कैसा है कि एक बॉक्स जैसा होता है और इसमें बहुत सारी कीज लगी हुई होती है. ठीक है. कुछ इस तरह का मैं बताती हूँ आपको. ये इस तरह का बॉक्स है और यहाँ पे अलग अलग कीज है. ठीक है. हर एक कीज जो है वो एक एक रेजिस्टेंस दिखाती है. मतलब 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 25 ओम,
30 ओम, इस तरह से उसमें कीज अटैच है। जैसे ही आपने यहाँ की की बाहर निकाली, मतलब आपके इस पर्टिकुलर व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको वापस रखते हो 10 क्यों निकालते हो, तो 10 ओम। अगर आपने 5 और 10 दोनों कीज निकाली, मतलब आप कितना रेजिस्टेंस दे रहे हो, 10 ओम, 15 ओम सॉरी। तो इस तरह से ये कीज जो होती है, ये कीज को हम निकाल के यहाँ पर रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा एक रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच। उसके बाद में ये जो 2 पॉइंट्स है, इसमें हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अटैच आर कंडक्टिविटी सेल। ओके, हम लोगों ने जो कंडक्टिविटी सेल लिया है, जिससे हम जिस सोल्यूशन के हमको कंडक्टिविटी पता करना है, वो सोल्यूशन हम इसमें लेंगे, इस कंटेनर में लेंगे, और इसमें हमने क्या अटैच किया, वी हैव अटैच अ कंडक्टिविटी सेल, अ ग्लास ट्यूब हैविंग द 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, या ग्रेफाइट के भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस टाइप का कंडक्टिविटी पता कर रहे हैं, किस टाइप का सेल यूज करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये चेंज होता है। ठीक है, सो अब ये जो है, दिस इज कनेक्टेड ओवर हियर, एक है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, मतलब एक के ऊपर है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर है हमारा नेगेटिव चार्ज। ये इस तरह का सेटअप होता है। ठीक है, मींस अब यहाँ पर जो भी हमने सोल्यूशन लेंगे हम, ओके, उसकी कंडक्टिविटी हम कैसे पता करेंगे, बाय यूजिंग दिस व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को करते कैसे हैं, उसके बाद अब करते कैसे हैं देखते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच का जो पॉइंट है, इसके साथ अटैच होता है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर मतलब क्या है, एक ऐसा डिवाइस होता है, वोल्टामीटर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरह का एक गैल्वेनोमीटर होता है, जो क्या करता है, जिस तरह से करंट यहाँ पर पास होगा, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर इस तरह का कुछ रहता है, उसमें रीडिंग्स रहेगी और बीच में एक कांटा रहेगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा आपका नीडल, वो क्या होगा, जैसे ही इसमें करंट पास होगा, तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ओके, हिलेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये हमको कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है या कब डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये जो है, ये क्या है, एक गैल्वेनोमीटर। इस टाइप का एक गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पर अटैच करते हैं। अब इसी गैल्वेनोमीटर के साथ हम अटैच करते हैं एक जॉकी। जॉकी मतलब क्या है, ये इस तरह की एक मार्कर पेन की जैसा ही वो एक पॉइंटर की है, पॉइंट है मतलब, जिसका हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये जॉकी इसके साथ अटैच होती है। तो इस तरह का ये पूरा सेटअप होता है। ओके, अब ये सेटअप, हाउ वी आर यूजिंग दिस सेटअप टू फाइंड आउट द कंडक्टिविटी, लेट्स सी दैट। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, वी आर गोइंग टू रिमूव वन रेजिस्टेंस की फ्रॉम दिस। ठीक है, हम लोग एक की इसमें से रिमूव करेंगे, और जो भी रेजिस्टेंस मैं रिमूव कर रही हूँ, सपोज उसकी वैल्यू होगी मेरी R1। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से रिमूव किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया, डायरेक्ट करंट अप्लाई नहीं किया। अगर मैं डायरेक्ट करंट यहाँ अप्लाई करूंगी, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट करंट क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रोलिसिस लाएगा। मतलब यहाँ हम क्या चाहते हैं कि अंदर जो आयंस है वो काम करे, ना कि बाहर की इलेक्ट्रिसिटी इन आयंस पर काम करे, है ना। वी वांट दैट जो भी आयंस, अगर सपोज मैं यहाँ पे KCl सोल्यूशन ले रही हूँ, ठीक है, 0.1 मोलार का सपोज मैंने KCl सोल्यूशन यहाँ पर ले लिया, तो इस 0.1 मोलार KCl में जितने भी K+ और Cl- आयंस है, उन्होंने माइग्रेट करना चाहिए, और वो माइग्रेशन की वजह से जो भी यहाँ पर करंट होगा कैरी, वो हमें क्या बताएगा, कंडक्टिविटी बताएगा। तो ये अगर हमने डीसी करंट यूज किया, डायरेक्ट करंट यूज किया, तो ये क्या करेगा, ये करंट इनवर्स करेगा, इनवर्स चीज हो जाएगी यहाँ पर। तो जो हमारा यहाँ पे एम है कि टू फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस, ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैंने डायरेक्ट करंट ले लिया, तो ये K+ और Cl- क्या होंगे, यहाँ इलेक्ट्रोड्स पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, दे शुड माइग्रेट टुवर्ड द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एंड दे शुड डू द प्रोसेस, और दे शुड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, वही हम इस चीज में पता कर रहे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर वी यूज द ऑल्टरनेटिंग करंट। अब कैसे होगा, जैसे ही मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस पहले मैंने निकाल दिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस की मैंने यहाँ से निकाली, मतलब मैंने उतना रेजिस्टेंस वहां पर क्रिएट किया, सपोज वो रेजिस्टेंस है R1। ये क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगी, अब यहाँ ये जो जॉकी है, इस जॉकी को मैं इस वायर के ऊपर ड्रैग करूंगी, कभी यहाँ रखूंगी, कभी यहाँ रखूंगी, कभी यहाँ रखूंगी। ये क्यों कर रही हूं मैं, आई हैव टू फाइंड आउट द नल पॉइंट। मुझे क्या पता करना है, नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब क्या है,
कि ऐसा एक पॉइंट जहां पर ये वायर, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब इसका जो कांटा है 0 डिफ्लेक्शन, मतलब जो कांटा है वो क्या हो गया, पूरी तरह से स्टॉप हो गया, मतलब वो क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस, इतना रेजिस्ट करने की कैपेसिटी है उसकी, कितना रेजिस्ट कर रहा है वही हम इसमें निकाल रहे हैं, एंड वो रेजिस्टेंस से हम बाद में कंडक्टिविटी निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये की को मैंने सपोज यहाँ रखा, तो इसमें जो नीडल थी वो मूव हो गई, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, करंट अभी भी फ्लो हो रहा है। सेकेंड पॉइंट पे रखा, थर्ड पॉइंट पे रखा, फोर्थ, इस तरह से मैं क्या करते गई, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करती गई, और मैंने एवरी टाइम क्या नोट किया कि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या। जब तक डिफ्लेक्शन होता रहेगा मैं ये प्रोसेस को कंटिन्यू करती रहूंगी। अब सपोज ये पॉइंट में यहाँ पर एक टच किया मैंने, ठीक है, ये पॉइंट सपोज सी है, ठीक है, इस वायर को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। तो सपोज मैंने ये जब जॉकी को यहाँ टच किया तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, मतलब जो नीडल थी वो कहीं मूव नहीं हो रही थी, वो कांस्टेंट थी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई करंट इस टाइम पर यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इतना रेजिस्टेंस अगर इस सेल का हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन एंड दैट विल बी नथिंग बट द नल पॉइंट फॉर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज एपरेटस। ये जो हो गया वो क्या हो गया, नल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये जो नल पॉइंट मिल गया, अब इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो हमारा प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इट इज सेड दैट द R1 अपॉन Lx इज इक्वल्स टू R2 अपॉन Ly, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, R1 अपॉन Lx इज इक्वल्स टू R2 अपॉन Ly। ये आप लोगों ने फिजिक्स में, आपको डेरिवेशन है इसका, तो ये आप लोग फिजिक्स में देखोगे कि ये जो हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है वो कैसे आया है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल सेज दैट R1 अपॉन Lx इज इक्वल्स टू R2 अपॉन Ly। अब ये R1 क्या है, ये है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस मैं चेंज कर सकती हूँ, ये हो गया मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से जो मैंने रेजिस्टेंस रिमूव किया है वो है मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस, को मैं एवरी टाइम चेंज कर सकती हूँ। पहले मैंने नल पॉइंट यहाँ पे 5 वाला निकाला, नल पॉइंट चेक किया, फिर मैंने 10 वाला निकाला, फिर नल पॉइंट चेक किया, 15 वाला निकाला, फिर नल पॉइंट चेक किया। इस तरह से मैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो भी रेजिस्टेंस मुझे चाहिए वो मैं रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव करके इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो हो गया R1। R2 मतलब है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन, जो हम यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि ये जो हमारा सोल्यूशन है उसका कितना रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू में कहां से मिल रही है, R2 से। देन Lx मतलब हमारा हो गया डिस्टेंस AC। अब ये जो वायर है इसके नीचे एक स्केल होती है, जब आप ये देखोगे एपरेटस तो इसके नीचे आपको एक स्केल दिखेगी, जिस तरह से हमारी नॉर्मल स्केल होती है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8 इस तरह के रीडिंग्स होती है। तो जैसे ही आपने नल पॉइंट यहाँ C पर क्लिक किया तो आप क्या करेंगे, इस C पॉइंट पे सपोज यहाँ पे 15 है, तो ये क्या हो गया, आपका जो डिस्टेंस है A से लेके C तक के कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू क्या है हमारी Lx इज नथिंग बट द डिस्टेंस AC। एंड देन Ly मीन्स ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है। अब अगर ये स्केल 30 की है सपोज, ठीक है, यहाँ से लेके 30 तक के आपको दिख रहे हैं उसमें रीडिंग्स, तो अब ये जो CB जो लेंथ हो गई, मतलब BC, ये हो गया मेरा Ly, और वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर ये 15 है यहाँ पे 30 है, मतलब ये भी क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। इस तरह से ये रीडिंग्स को नोट किया जाता है। तो ये Lx Ly। अब जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मैंने पहले रेजिस्टेंस रिमूव किया, तो मेरे पास R1 की जो वैल्यू है वो नोन है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने निकाली है। उसके बाद में R2 हमें पता नहीं है, ये हमारा है सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो हमें पता करना है, ठीक है। Lx हमें मिल गया क्योंकि हमें नल पॉइंट मिल गया, यहाँ पर हमें नल पॉइंट हम लोगों ने निकाल दिया कि पॉइंट C जो है वो हमारा नल पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस है वो आप इजीली मेजर कर सकते हो, स्केल पे दिया रहेगा, सो दैट मींस यू नो Lx। सिमिलरली यू आल्सो नो Ly, तो ये आप Ly की वैल्यू भी आपको पता है, तो आपके पास 3 वैल्यूज पता हो गई। So from that we can easily calculate out R2. So R2 means the resistance of the solution will be equals to, ये क्या हो जाएगा, R1 upon Lx into Ly। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये R2 of the solution मतलब the resistance for the solution की वैल्यू मिल गई, ठीक है।
जो भी वैल्यू मेरे पास थी वो मेरे पास आंसर आ गया. मीन्स व्हाट? I have used this Wheatstone-Bridge method to find out the resistance for this particular solution. अब resistance पे से हमें क्या निकालना है? We have to find out the conductivity. And just now we have said that K is equals to 1 upon R into L upon A. ठीक है, L upon A तो सेल कांस्टेंट है, वो हर एक सेल के ऊपर आपको दिया हुआ मिलेगा. जब आप सेल यूज करोगे, जब आप मार्केट से वो सेल खरीदते हो, तो उसमें आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्डअप है, हम उसको खोल नहीं सकते उस सेल को. अगर आपने खोल खाल की तो वो आपका सेल जो है वो खराब हो जाएगा. तो ये जो सेल है, सेल कांस्टेंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ होता है. जब वो फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होके आता है तब आपके पास ये वैल्यू होती है. सो अब रेजिस्टेंस हमें पता चल गया है सोल्यूशन का, तो हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी पता कर लेंगे. सो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट सेल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, जो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया. एंड दस वी कैन फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल यूजिंग द Wheatstone-Bridge मेथड. ओके, सिंपल है. सिर्फ ये सेटअप जो है वो एक बार समझना है. आप लोगों के बुक में थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है, यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट. मैंने ये वाला सेटअप इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों को ये समझना, क्योंकि यू आर यूजिंग दिस apparatus in your physics lab, so it will be easy for you to understand through this concept instead of using that जो भी डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है उसको यूज करने से अच्छा आप अगर ये वाला यूज करते हो तो यू विल फाइंड इट मोर इजी. सेम चीज है, कुछ नहीं दिया, सिर्फ वहां पे एपरेटस नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ वायर के कनेक्शंस दिए हुए. ठीक है, तो सेम चीज है, आप वो भी ड्रॉ करेंगे तब भी आपको राइट मिलेगा. और अगर आप ये भी ड्रॉ करते हो इन ऑर्डर टू, अगर आपको ये आता है कि ड्रॉ द डायग्राम फॉर द Wheatstone-Bridge मेथड टू फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, या जो डायग्राम आपको बुक में दिया है आप वो भी यूज कर सकते हो. बट आपको क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हाउ वी आर यूजिंग दिस Wheatstone-Bridge टू फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ द सेल. और इसी पे से अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, लास्ट थर्ड वीडियो में मेरे ख्याल से हम लोगों ने देखा था व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी. दैट इज 1000 इंटू के अपॉन सी. ओके, तो अगर आप जो भी सोल्यूशन यहाँ यूज कर रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता है और कंडक्टिविटी भी पता चल गई हमें, तो कंडक्टिविटी हम Wheatstone-Bridge मेथड से निकालेंगे. कॉन्सेंट्रेशन हम ऑलरेडी जानते हैं सोल्यूशन का, सो फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी फॉर द solution. Okay, have you understood this concept? Okay, now we'll use this concept to solve one of the numerical. Let's solve a numerical over this concept. Okay, so if the numerical is of the type a conductivity cell containing 0.01 molar KCl gives at 25 degrees Celsius the resistance of 604 ohms. The same cell containing 0.001 molar AgNO3. Okay, the solution is changing. Here we are using the KCl solution and here it is AgNO3 with different concentration. Gives the resistance of 6530 ohms. Calculate the molar calculate the molar conductivity of 0.001 molar AgNO3. So we have to find out the molar conductivity for this solution. 0.001 molar AgNO3, and also he is giving us the conductivity, that means the value of K of 0.01 molar KCl at 25 degrees Celsius is 0.00141 per ohm centimeter inverse. Okay, so this is a numerical. So let us jot down first what is given to us and let us apply the Wheatstone-Bridge principle to it. Okay, or let us I should not say Wheatstone-Bridge principle, but the concept of how we are going to find out the conductivity using the resistance, let's see in this numerical. Okay, so first let us write down what is given to us. Now he is saying that a conductivity cell containing 0.01 molar KCl solution, means one of the solution is given whose concentration, suppose the first, I will name it as C1. So the first solution C1, or I should write C for KCl, concentration for KCl is 0.01 molar. Okay, gives at 25 degrees Celsius the resistance of, means the value of R1, means the resistance for KCl is 604 ohms. Okay, this is given.
Then the same cell means we are not changing the cell, but we are just changing the solution. Here it is a KCl solution, and now keeping the same cell, we are using another solution whose concentration whose concentration is given. Means the concentration for AgNO3 means the second solution is given to be 0.001 molar. Gives the resistance of, means the resistance for AgNO3 is given, that is 6530 ohms. Okay, then he is asking us to calculate the molar conductivity. Means here we have to find out the molar conductivity for AgNO3. Okay, we have to find out the molar conductivity for AgNO3. Also given the conductivity means the K for KCl is 0.00141 ohm inverse centimeter inverse. This is also given to us. Okay, so all these things are given, and we have to find out the molar conductivity for AgNO3. Okay, first let us write down the formula. That is, we know that the molar conductivity for AgNO3 will be nothing but 1000 into K. K means the molar conductivity for AgNO3 upon C. This is a formula, 1000 into K upon C, and here conductivity is for the AgNO3, because we have to find out the molar conductivity for AgNO3. तो हमें यहाँ conductivity भी किसकी लेनी पड़ेगी? AgNO3 की. ठीक है, तो अब हमें ये चीज पता करनी है. क्या क्या नहीं है हमारे पास, ये भी दिया हुआ नहीं है. C सिर्फ हमें पता है, कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है इस सोल्यूशन का, लेकिन हमें कंडक्टिविटी पता नहीं है. तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए वी नो दैट कंडक्टिविटी इज नथिंग बट सेल कांस्टेंट अपॉन आर. जस्ट हमने अभी देखा, सेल कांस्टेंट अपॉन आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3. अब इन दोनों में से सेल कांस्टेंट हमें नहीं पता और आर ऑफ AgNO3 दिया हुआ है. तो अगेन हमें सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि दो चीजें अननोन है, तो हम दो चीजें अननोन है तो पता नहीं कर सकेंगे. So for that we have to first find out the cell constant. And now since in this case it is saying that it has the same cell constant, same cell we are using for both the solution. इस solution और इस solution के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, same cell use कर रहे हैं. मतलब cell constant जो है, cell constant जो है वो क्या रहेगा, it will be same for both the solutions. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cell constant पता करेंगे. अब cell constant हम किस तरह से पता कर सकते हैं, K into R. पर यहाँ हमें ना तो कंडक्टिविटी पता है AgNO3 की, ना ही हमें यहाँ रेजिस्टेंस पता है, बट कंडक्टिविटी नहीं पता है. तो हम क्या करेंगे, ये सेल कांस्टेंट हम क्या करेंगे, KCl सॉल्यूशंस के थ्रू निकालेंगे. क्योंकि KCl के लिए हमें कंडक्टिविटी भी पता है, K फॉर KCl भी पता है और R फॉर KCl भी पता है. सो इफ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर KCl वी कैन फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट. और सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा क्योंकि सेम सेल हम दोनों सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं. So first let us find out the cell constant. So cell constant will be equal to K for KCl into R for KCl. ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगी मैं. ठीक है, अब K कंडक्टिविटी फॉर KCl यहाँ पर दिया हुआ है हमें, that is 0.00141 ohm inverse centimeter inverse into R for KCl is 604 ohms. ठीक है, तो ये ओम कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 604 into 0.0141. सो वी गेट ओवर हियर 0.852. अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 0.852. मीन्स व्हाट, वी हैव फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमें मिल गई है. सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है, K की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी वी डोंट नो K, तो हम K फॉर AgNO3 आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें अब हमें पता हो गई है. ओके, सो K मीन्स द कंडक्टिविटी फॉर AgNO3 इज नथिंग बट सेल कांस्टेंट अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3. ओके, एंड सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट 0.852 सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन रेजिस्टेंस फॉर AgNO3 इज 6530 ohms. Okay, so if we divide 852 by 6530 ohms, we'll get the value of conductivity of AgNO3, and that will come out to be 1.3 into 10 raised to the power minus 4 ohm inverse
centimeter inverse. So this is my conductivity for AgNO3. Okay, so now I have got this value. So just I have to keep this value over here and I can find out the value for molar conductance. So the molar conductivity for AgNO3 is equals to 1000 into conductivity for AgNO3 upon C. Okay, concentration of AgNO3. Okay, so this will become 1000 into K for AgNO3. Just we find it out as 1.3 into 10 raised to the power minus 4 upon my C is concentration is 0.001. Okay, so this I can write it as 1 into 10 raised to the power 3 into 1.3 into 10 raised to the power minus 4 upon, now this can be written as 1 into 10 raised to the power minus 3. Okay, because if I am going to convert this, it will become 0.001 है ना, तो यही चाहिए हमें, तो हम इसको 1 into 10 raised to the power minus 3 भी लिख सकते हैं. ओके, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 जब ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा +3 और +3 और +3 मतलब +6 minus 4 is +2. So 1.3 into 10 raised to the power 2 and that is nothing but 13. 2 से हम शिफ्ट करेंगे, ये 1 और 2 मतलब 130 आ जाएगा मेरा 130. यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसमें है हमारा, मोलार में. ठीक है, और ये जो हमारा K की वैल्यू थी वो किसमें थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर inverse. So we are going to write down K is equals to 130 m mole, or I can write it as mole ohm inverse centimeter inverse. So this is my molar conductivity for AgNO3. Okay, so have you got it? So in this way the numericals may be asked over this, or it may also be asked on the Wheatstone bridge. मतलब आपको R1 R2 की वैल्यू दी हुई रहेगी, सॉरी R1 की वैल्यू दी हुई रहेगी, Lx और Ly की वैल्यू दी हुई रहेगी, and you have to find out the resistance or the solution, and from that resistance you have to find out the conductivity. इस टाइप के भी आपको numericals पूछे जा सकते हैं. Means you have to just use or apply all the formulas that we have seen in this concept and you have to just solve the numericals. Okay, so hope you have understood this concept of measurement of conductivity, and if you have any query regarding this topic, you may ask me in my comment box, and let's meet in the next video. Till then, thank you, bye bye.